friends, I welcome you all to my YouTube channel. So today's session is about the evolution of men. This is from the history class standard 5 ICSE book. So I make sure that you all study. So this evolution of men, अगर आप लोग इतना भी सुन लोगे, if you all keep this much in mind, the whole chapter is completed and you all can score good marks. So I will start with it. See, first we will see the gradual changes. जैसे कि अर्थ आज है, we can see it right now, we can see the changes which is right now. जैसे आज humans है, जैसे animals आज है, they were not like that, not the same like this millions of years before. जैसे कि हम लोग जानते हैं ग्रेजुअल चेंजेस टुक प्लेस, तो ये वही चीज़ है. प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस लुक्ड वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे आर राइट नाउ. तो ये सब चेंजेस जो है ग्रेजुअली होते गए एनवायरनमेंट के अंदर. कुछ भी चीज़ सडनली नहीं होती है, वैसे ही एनवायरनमेंट की जो चेंजेस हुए हैं उसका भी यही सेम चीज प्रोसेस है. द चेंजेस टुक वेरी ग्रेजुअली द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट वॉज टेकिंग प्लेस. So the first ancestor of the human was Ramapithecus, as you all can see in the picture. ये Ramapithecus है, ये ancestor of humans है. It lived about 14 millions of years ago. 14 million years ago की बात है जब ये Ramapithecus थे, Ramapithecus, and their weight was around 14 kg. ये बस 14 किलो के होते थे, and they were small ape-like creatures who walked upright. And now we can see that the changes that took place from the from the apes. See, the apes were first on the tree tops and later they started living on the ground. Like we can see many years ago, monkeys, apes, these were the creatures who used to always stay on the monkey. ये लोग सब trees पे रहते थे. ये लोग ground पे नहीं रहते थे. ये लोग सिर्फ trees पे ही रहते थे. फिर जैसे जैसे changes होने लगे, तो वैसे वैसे ये लोग जो ट्रीज़ को छोड़ के ये लोग ग्राउंड पे आने लगे. जैसे जैसे ग्राउंड पे रहने लगे, ये लोगों का पॉस्चर स्ट्रेट होते गया. फ्रॉम लाइक बेंडिंग पोर्शन दे स्टार्टेड स्टैंडिंग. तो ग्रेजुअली जैसा मैंने ये बताया, ये इमेज में यू ऑल कैन सी कि ये लोग पहले झुके हुए थे, फिर स्ट्रेट होते 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 यू कैन सी दे आर स्टैंडिंग स्ट्रेट राइट नाउ, एज वी ह्यूमन्स आर टुडे. वी आर नॉट बेंडेड ह्यूमन्स, वी आर स्ट्रेट लाइक दैट वे. सो यू ऑल कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर कि पहले कैसे ये लोग ट्रीज़ पे रहते थे एंड लेटर दे केम ऑन द ग्राउंड. सो द होमो सेपियंस, वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट होमो सेपियंस नाउ. होमो सेपियंस आर द वाइज ह्यूमन. जैसे रामापिटेकस होते गए, होमोनिड्स, ये सब जो भी है ये सब हमारे सब एंसेस्टर्स हैं. तो जब होमो सेपियंस आए थे, सो दे वर कॉल्ड द वाइज ह्यूमन्स. होमो सेपियंस आर नथिंग बट द वाइज ह्यूमन्स. उसके बाद में चेंजेस होते गए और आज जैसे ह्यूमन्स हैं वो हो गए. These were the wise humans because they are called the wise humans actually basically because they started the changes, like from the, you can see in the previous slide I showed you all that how from the tree they started coming on the ground and later they started walking on the ground. So they found many of the things which they could not see from the tree when they were on the tree, but basically when they started walking on the ground, they were searching for food and shelter, and they realized that they need to eat something so that their hunger is fulfilled, and like that way changes, lots and lots of changes took place. So we will be learning now life of the early humans. So what happened is ancient time, in the first slide you all can see the hunter gatherers. They are nothing but they used, I told you all, as they were on the ground. तो वो लोग जंगल से क्या करते थे, एनिमल्स को लाते थे, एनिमल्स को किल करते थे और जो एनिमल फ्लैश है वो लोग वो खाते थे. और रहने के लिए वो लोग ऐसे, जैसे आज प्रॉपर घर है वैसे नहीं रहते थे, वो लोग ऐसे केव्स में रहते थे. जैसे कि आप लोग को दिख रहा है ये केव्स हैं, ये ऐसे केव्स में ये लोग रहते थे और ये लोग ऐसे एनिमल्स कट करके ऐसे एनिमल्स खाते थे. तो इन लोगों का जो हंगर है वो मिट जाता था और इन लोगों के पास में रहने के लिए जगह होता था, पानी, सब चीज़ होती थी. एंड दे यूज्ड टू ईट द फ्रूट्स, nuts, roots and also the seeds. फिर you all can see these stone tools.
व्हेन दे वर फर्स्ट हंटिंग, तो वो लोग क्या करते थे, पत्थर से हंटिंग करते थे. बट फिर उन लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग जो हमारे स्टोन्स है, अगर उसको हम लोग अच्छे से शार्प करेंगे, देन वी विल फाइंड लाइक मोर ईजियर वे फॉर हंटिंग. यानी कि उन लोगों ने फिर ऐसा सोचा कि हम लोगों को हमारे स्टोन्स को शार्प करना चाहिए. शार्प करने से क्या होगा, हंटिंग हमारे लिए ईजी होगी, जो एनिमल का फ्लैश है वो निकालने में हमें आसानी होगी. तो वही ये लोग करने लग गए. ये जैसे कि ऑल कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर, जो ये लोगों ने कैसे स्टोन्स को कैसे अलग अलग तरीके का शेप दिया है. तो ये शेप देने से उन लोग मीट को चॉप करते थे, हंट करते थे एनिमल्स, और ये उन लोगों को ग्राउंड डिग करने में मदद करता था. और ये लोग एनिमल्स स्किन को स्टिच करके दे यूज़ टू कवर देम सेल्व्स. यू कैन सी इन द सेकेंड पिक्चर, दे यूज़ टू कवर देम सेल्व्स विद बार्क लीव्स. जो ट्रीज़ होती है, जो पत्ते होते हैं, उससे वो लोग अपने शरीर को ढाकते थे. बेसिकली दे यूज़ टू कवर देम सेल्व्स विद दैट, एंड सेकेंडली दे यूज़ टू कवर देम सेल्व्स विद दिस. एज यू ऑल कैन सी द एनिमल्स फ्लैश, जो एनिमल की स्किन होती थी, उससे ये लोग अपने आप को कवर करते थे. यू ऑल कैन सी द पिक्चर. देन वी विल सी, फर्स्ट विल सी दिस ओनली. ओके, फिर क्या हुआ कि जैसे ये लोग मीट ये सब करके ये लोग जो है उन लोगों का गुजारा करने लगे. फिर later what happened is men discovered fire. Now how did men discover fire is the question. Once what happened in a jungle, fire took place. How did fire took place? Actually जब ये लोग stones है ना, जब ये लोग इसको शार्प कर रहे थे, स्टोन्स को कैसे शार्प करेंगे, दो पत्थर आपस में घस के जब इसको शार्प कर रहे थे, तो एक बार उन लोगों ने नोटिस किया कि दो पत्थर एक साथ घसने में उसमें एक शाइन आई. दे सॉ अ स्पार्क बेसिकली. तो वो स्पार्क से उन लोगों को पता नहीं था क्या है. वो स्पार्क बेसिकली टर्न्ड आउट इनटू फायर लेटर ऑन, और पूरे जंगल में आग लग गई. सो इनिशियली दे वो वेरी स्कैर्ड ऑफ इट, वेरी अफ्रेड कि बाप रे आग लग गई, अब हम क्या करेंगे. बट लेटर ऑन दे नोटिस दैट द एनिमल्स वर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ इट. सो व्हेन द फायर गॉट एक्सटिंग्विश्ड, जब फायर ठीक हो गई, एक्चुअली फायर एक्सीडेंटली लग गई थी गलती से. जब फायर सही हो गया तो दे एक्चुअली फायर कभी लगी नहीं थी. फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ कि फायर लगी है. दे वर द फर्स्ट वन टू सी कि फायर कैसे लगी, कैसे हुई. सो दे वर लाइक दे थॉट दैट फायर इज़ सो यूज़फुल फॉर अस, बिकॉज उससे उन लोगों को क्या हुआ, जो मीट था ना वो कुछ फायर में जल गया. जब उन लोगों ने उस जले हुए मीट को खाए तो उन लोगों को इतना अच्छा उसका फ्लैश लगा. दे टोल्ड कि दिस इज़ सो टेस्टी दैट दे स्टार्टेड रोस्टिंग द मीट एवरी टाइम बिफोर ईटिंग इट. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दे यूज टू टेक द मीट एंड दे यूज टू रोस्ट एवरी टाइम. एंड हाउ डिड द फायर टू प्लेस, दे लेटर रियलाइज कि जब हम दो पत्थर को आपस में घसते तो आग लग जाती है. तो वो लोग उसी तरीके से डेली आग लगाने लगे, एंड दे यूज टू ईट the flesh like this, like what we say today barbecue and all. So they used to eat like that. This was accidentally, but they all got very much benefits from this fire. They realized that how useful is fire. Okay, and because of the fire, ashes were also there, and we can see the bones they saw and everything. Okay, this is farming in the Neolithic age. In the Neolithic age, farming took place. You all can see in the first picture the farming. एंड बेसिकली जब फार्मिंग स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले ये लोग वीट और बार्ले को ग्रो करते थे. दीज वर द फर्स्ट क्रॉप्स विच वॉज ग्रोन देयर. वीट और बार्ले ही ग्रो होता था. और फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी बहुत होता था. दे यूज टू कैरी द गोट्स, शिप्स, पिग्स, एवरीथिंग, cows and goats and everything they used to domesticate. And they used to use the cow and goat for the milk. Then they used to use the horses, donkeys to carry the loads. Where animals also provided early men with the skin and meat. So it was later that they used animals to plow fields to protect their crops and for transportation purposes as well. As we all know today also, in many places farmers use
cow and other useful animals. Okay, they keep all these kettles. Why? Because they help in plowing the food fields and also in giving milk, and they are very useful animals. Okay, सो जैसी फार्मिंग होने लगी और ये सब चीज़ें होने लगी, जैसे एवोल्यूशन होते गया, तो जो ह्यूमंस थे उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि हम लोगों को कोई ऐसी जगह रहना होगा जहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हो, बहुत ही आसानी से जहाँ हमें ये सब मिल जाए। तो ऐसी जगह क्या थी? रिवर बैंक्स। ये सब जगहों पे वो लोग रहने लगे। वाई रिवर बैंक्स? बिकॉज रिवर बैंक्स हैड फर्टाइल लैंड टू ग्रो क्रॉप्स। फर्टाइल लैंड उन्हें चाहिए होता, ज़मीन ऐसी चाहिए होती थी जिस पे क्रॉप्स जल्दी से ग्रो हो। वो ज़मीन उन्हें कहाँ मिलती थी? रिवर बैंक्स के पास। तो वो लोग वहाँ रहने लग गए। अब वहाँ रहने का फ़ायदा सिर्फ क्रॉप्स ग्रो करना ही नहीं था, बल्कि देयर वाज अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर ऑल्सो फॉर द फील्ड्स एंड फॉर द अदर एक्टिविटीज़। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वाटर इज़ यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस। तो रिवर बैंक्स के पास रहने की वजह से क्या हुआ कि उन लोगों को वही पानी वो लोग यूज़ करने लग गए फील्ड्स में, उन लोगों के घर के काम में और क्रॉप्स वगैरह ग्रो करने में, जैसे फील्ड्स में सब जगह यूज़ होने लग गए। एंड वाटर्स वर ऑल्सो very beneficial for household works and rivers were used for the means of the transport. रिवर हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत मदद कर रही थी। ओके, दिस इज़ एन इंसिडेंट। जब एक बार क्या हुआ था, सभी एंशियंट जैसे सभी ह्यूमंस एक गेट टुगेदर, मतलब एक साथ में खड़े थे, और सडनली क्या होता है, एक you can see in this first one you all can see this is basically a wood। तो एक बार क्या होता है, एक हायर प्लेस पे से, जैसे हम लोग माउंटेन्स बोल सकते, सडनली माउंटेन्स पे से ये जो व्हील है, ये व्हील बाद में बना है, बस एक लकड़ी का टुकड़ा रोल होके गिरने लगा। तो जैसे ही वो रोल होके गिरने लगा, वो बहुत ही स्पीड में गिरा। बिकॉज जैसे स्लोप में कोई चीज़ गिरती है तो वो बहुत स्पीड में गिरती है, ये हमें सबको पता है। तो जैसे ही वो बहुत स्पीड में गिरने लगी, तो जो ह्यूमंस थे उनको ये रियलाइज़ हुआ लेट आहिस्ते आहिस्ते कि यार ये कितना इजीली, मतलब हमारा काम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हर चीज़ के लिए, अगर हम ऐसा कुछ इन्वेंट करें जो हमें इसमें मदद करे। तो लाइक दैट विद द व्हील्स वर इन्वेंटेड एंड यू ऑल कैन सी द चेंजेस हाउ इट टुक प्लेस इन द व्हील्स। लाइक पहले हम लोग देख सकते हैं लकड़े का कैसे व्हील बना, फिर उसके बाद में उसमें डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो भी लकड़े का ऐसा। देन यू ऑल कैन सी द रिंग वन एंड देन द टायर्स विच आर यूज्ड नाउअडेज। तो ऐसे व्हील्स के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होने लगे। इट वॉज बेसिकली डन फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर with lesser amount of weight to be carried on. Okay, next we will see the potteries। जब ये जो wheels है, just hold on okay, so this is how the wheels took place and you all can see the changes in the wheels. Then further we will see the pottery. So wheels were not only used for the transportation purposes but they were also used for मेकिंग ऑफ पॉट्स। अब पॉट्स हम लोग क्यों बनाते थे? पॉट्स बनाने की वजह ये थी कि पॉट्स एक यूटेंसिल्स की तरह यूज़ होते थे जिसमें हम लोग वाटर स्टोर कर पाते थे, हम लोग फूड ज़्यादा दिन तक के लिए स्टोर कर पाते थे उसके अंदर। तो पहले तो नॉर्मल पॉट्स बनने लगे, but later on the ancient designs and styles were given to them, as you all can see in the picture. See this picture, a design is given basically. So these were the designs which were given in the ancient pots. Okay, they were made from the clay. The potter's wheel is used even till date. Okay, in today's time also pot is made from this kind of wheels only, you all may be knowing. Okay, I think you all have understood about the pot so much. Okay, so now I would like to tell you all one extra thing। ये सब चीज़ें जो हम लोग बोलते हैं कि पॉट्स है, फिर ये सब जो भी चेंजेस हुए, हम लोग ऐसे ही डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना कि ये सब चेंजेस हुए, कैसे हुए, किसको पता। तो देर आर आर्कियोलॉजिस्ट्स जो लोग ये सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं,
तो उन लोगों को ये सब चीज़ें मिली गई है, ये पॉट्स मिले हैं, ये व्हील्स जो है डिफरेंट टाइप्स के वो मिले हैं। तो उन लोगों ने ये सब चीज़ें देखे हैं, इसके ऊपर रिसर्च की है, तभी हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि ह्यूमंस के फॉसिल्स मिले, यानी जो उनकी हड्डियाँ होती है वो मिले। अब पहले हड्डियों के अंदर जो हम लोग शेप, साइज़, सब चीज़ के अंदर चेंजेस देखते हैं, कभी साइज़ बड़ी होती है, छोटी होती है, तो वो स्टडी करने पे पता चला कि जैसे जैसे चेंजेस होते गए वैसे ह्यूमंस की बॉडी में चेंजेस आए। तो ये फॉसिल्स मिलने की वजह से हुआ। फिर पोट्रीज़ का हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने पॉट्स बाकायदा है देखा है। पॉट्स की वजह से हम लोगों को पता चला कि ऐसे पॉट्स बनते थे। ओके, देन okay, I think you all can see the image. This is the pet house. What was pet house? जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि फ़ायर इन्वेंट हुआ था, तो फायर से उन लोगों ने वो मीट को रोस्ट करके खाने लगे, तो उससे उन लोगों को ज़्यादा टेस्ट आने लगा। तो वैसे ही उन लोगों ने पिट हाउसेस बनाने लग गए। पिट हाउसेस वर डग इनटू द ग्राउंड विथ स्टेयर्स और स्टेप्स लीडिंग इनटू देम। दिस प्रोबेबली प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। इससे क्या फ़ायदा होता था, एक तो जब बहुत ही कंडीशंस बहुत ही क्लाइमेट के ख़राब होते थे, यानी बहुत ज़्यादा ठंडी लगना और बहुत ज़्यादा ही हार्श क्लाइमेट हो जाता था, तो उस वक्त ये लोग फायर जला के आसपास ऐसे बैठ जाते थे, अपना हाथ सेकते थे। बेसिकली उन लोगों को वो क्लाइमेट से बचाता था। सेकेंडली, दे वर यूज्ड फॉर द कुकिंग on both outside and inside the huts. They showed that they cooked the food. मतलब क्या होता था, फूड ये लोग बनाते थे। एक तो ये लोग ऊपर से भी बना सकते थे और नीचे से भी, यानी अलग अलग टाइप्स के जो यही मतलब बेसिकली जो मीट ये लोग खाते थे, तो वो फूड बनता था इससे, और एक तो क्लाइमेट से ये लोग बचते थे। तो दीज वर द 2 रीजन्स जिससे ये ऐसे होता था। I hope you all have understood the whole chapter. The first chapter, Evolution of Men, which is in the 5th standard textbook, is completed with this video. I hope आप लोगों को सब चीज़ बहुत अच्छे से समझी होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझी है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू ऑल अगेन। और लैंग्वेज का भी आप लोग प्लीज़ मुझे एक बार बोल देना कि हिंदी चलेगी, इंग्लिश चलेगी, या फिर जैसे मैंने ये लेक्चर में बताई हूँ वो चल जाएगी। ओके, सो I hope you all are studying. I know the pandemic situation and everything, so this is just to help you all कि आप लोग को इससे हेल्प मिले और आप लोग घर बैठे बैठे पढ़ सके। बस इसलिए ये वीडियोस बना रही हूँ मैं। I hope it is helping each one of you. Make sure you all study. Studies are very much necessary. It's really important. Thank you.